वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So welcome all devotees. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 17. The title of the chapter, Punishment and Reward of Kali. Our today's discussion starting from text number 19. I will read Sanskrit and Padma Mataji, you have Bhagavatam, you can read translation. Okay, you have, I can see. So I will start with Sanskrit. Canto 1, chapter number 17 and text 1-9. All right, you can open by the time. केचिद् विकल्पवसना आहुर आत्मानम् आत्मनः दैवं मन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्. English translation. Some of the philosophers who deny all sorts of duality declare that one's own self is responsible for his personal happiness and distress. Others say that superhuman powers are responsible, while yet others say that activity is responsible. And the gross materialists maintain that nature is the ultimate cause. Thank you so much. Who is speaking this? कौन बताएगा कौन बोल रहा है ये? Bull. Yes, the personified of religious principles. Bull is speaking here. To whom? किससे बात कर रहे हैं? Parikshit Maharaj. Very good, excellent, Parikshit Maharaj. Remember the context, then the interest will be there. Otherwise, ये क्या बात कर रहे हैं? Philosophers, gross materialists, क्या बात कर रहे हैं? पता ही नहीं चलेगा. So here, when Parikshit Maharaj comes to the situation where cow and the bull were being hurt by this personified Kali, and Parikshit Maharaj, he wanted a statement from the victim कि is Kali is going to Kali is hurting you, मुझे एक बार बता दो, मैं उसको सजा दूंगा. I'm going to kill you, you rogue. I'm going to punish you. ऐसा Parikshit Maharaj बोल रहे हैं. But the bull starts. We saw yesterday also the turning point कि it is very difficult to ascertain the miscreant. कौन हर्ट कर रहा है, किसकी वजह से हर्ट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? It's very difficult. And then here he's saying, we in this particular verse, Bull is saying, some of the philosophers who deny all sorts of duality declare that one's own self is responsible for this personal happiness and distress. Khud own self is responsible. Sometimes some other people say superhuman powers are responsible. Other people say activity, कर्मों के फल है, अपने खुद के कर्मों के फल है. Activity itself is responsible. Or gross materialists maintain that nature is the ultimate cause. प्रकृति की वजह से हो रहा है. So there are different reasons Bull is mentioning here. कल हम बात कर रहे थे तब अरुणा माता जी was making an interesting point, लेकिन अपना Zoom meeting बंद हो गया था. Can we continue? It was very nice point, माता जी. क्या था आपका point? And let's continue for a few minutes, then we will begin going further. वो पॉइंट यही था कि जैसे था ना कि हम कृष्णा की मर्सी लेके वी शुड accept whatever is happening to us, but my point was we should like as you mentioned Prabhuji, that we should accept it as a mercy when we have tried all the other avenues and it has not been solved. So of course, like if somebody is ill or somebody is in a difficulty, they have to try. It's not that they just give up and say okay, कृष्णा बचाना होगा तो कृष्णा बचा लेंगे. Like अपना एफर्ट तो करना पड़ेगा ना. So that is what you mentioned. And in my another question was like in this case, in this particular case, Parikshit Maharaj has been sent there by Krishna's arrangement. So of course Bull can be saved. Like of course theoretically I'm talking, Prabhu, I know. So yes. In this case, like as Bull is saying, I don't know कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, like क्यों मेरे कर्मा है या फिर क्या है. But it's Parikshit Maharaj is there. He can just kill the Kali and like save cow and bull. Of course, it's more depth in here. Correct. Yeah. But that's my understanding. Very good question. Yeah. Very nice question. And actually, this is
This is the purpose of studying Srimad Bhagavatam, that we understand ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा why it is happening, and हम ये situation में क्यों है. If we discuss, and that's why you see in the temple they have Bhagavatam class, one sloka they discuss for 1 hour every day morning, one sloka. Here we try to do 4 or 5 verses in 30 minutes, like 7-8 minutes में खत्म कर रहे हैं. But actually the purpose of life is this: understand Srimad Bhagavatam, understand the context, the reasons, what is happening, so that we can solve the ultimate purpose of the human form of life. आप लोग सब आ रहे हैं, every day morning gives us the chance to discuss Bhagavatam. Of course, because of the time shortage, अभी मैं एक श्लोका 1 घंटे तक लूंगा तो पता नहीं, maybe 20 years हो जाएगा by the time we finish Srimad Bhagavatam. So that's why we do it. But it is just to create interest in all of us, and then we can dive deeper. Srila Prabhupada के परपट पढ़ सकते हैं. So coming back to the question of Aruna Mataji, that why did Parikshit Maharaj did not kill Kali? वो चाहते तो he was powerful, he could have done that, and then Kali Yuga shouldn't have entered in this material world, and then सब कुछ अच्छा होता, ना मीट ईटिंग होता, ना इंटॉक्सिकेशन होता, ना गैम्बलिंग होता, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, फिर से जैसे पहले द्वापर युग, त्रेता युग था और सत्य युग था, ऐसा रहता, कितना अच्छा होता. करेक्ट होता है ना सबको, मुझे भी होता है कि कितना अच्छा होता, कलयुग को आने ही नहीं दिया होता, ये सारे प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, इतने सारे स्लॉटर हाउसेस भी नहीं होते, बट नथिंग विल बी देयर, आराम से लोग भक्ति करते जाते. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड. दैट्स योर क्वेश्चन, या अरुणा माता जी, बिफोर वी डिस्कस दैट कलयुग को मार ही देते परीक्षित महाराज तो आगे ये सब होता ही नहीं जो अभी हो रहा है. Yes, when you see that somebody is like doing this wrong thing, you Something do wrong. not question or something. You just just start like fighting. Correct. And that's what Krishna did. No, when he saw that Duryodhan party was not doing, he said to Arjuna, let's fight and finish them off. और फिर से धर्म को establish करो. So we have to understand here that this Kali Yuga entering is like the shift of energy. जैसे अभी देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट 24 आवर्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. लाइक इफ यू कंपेयर टू सत्य युगा, Dwapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. So morning can be compared for our easy understanding with Satya Yuga, afternoon Dwapar, evening Treta Yuga. Of course, previous Yuga cycle or this Yuga cycle, it has been interchanged, Dwapar or Treta. लेकिन जब प्रीवियस युगा साइकिल से द्वापर से जब कली आता है तो इट्स नॉट एन इंस्टेंट कि लाइट का, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वी टर्न ऑफ द स्विच एंड इमीडिएटली सनलाइट होता है और डार्क हो जाता है. बट इफ यू एक्चुअली सी इन द नेचुरल वे व्हाट इज हैपनिंग, धीरे धीरे सन सेट होता है और धीरे धीरे लाइट जाता है और धीरे धीरे डार्क होता है. So it goes like a sandhya, is हम बोलते हैं ना evening sandhya. So in the same way, this Kali Yuga entering, अभी जो हम चल रहे हैं, जो situation हो रहा है, this is like a sandhya where Dwapar Yuga is slowly going down because Krishna left 5,000 years back. So Dwapar Yuga is slowly going, the effects are still there, and that's why one leg of dharma is still there. थोड़ा अभी भी है, and Kali Yuga has also begun little bit. So we are in that phase where still the previous this dharma अभी भी थोड़ा बहुत बचा है और कलयुगा full फ्लेज में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है. 5,000 साल हो गए हैं और 5,000 साल तक ये संध्या टाइम रहेगा, जो ओवरलैपिंग है, प्रीवियस युगा और कलयुगा का ओवरलैपिंग है. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस पर्टिकुलर टाइम वेयर द benefit of Kali Yuga is there, where Harinam is available, Srimad Bhagavatam is available, where the process to go back is very simple and fast. And we are in a process where all these previous religious principles, and they are still available in a whatever little way, it's still available. तभी तो प्रभुपाद ने बोला था ना कि 10,000 years is the golden time in Kali Yuga. After that, no Hare Krishna. After that, no Krishna. After that, it's the very bad time of Kali Yuga is going to come. तो अभी हम वो very fortunate time में हैं. अभी दूसरी एंगल से हम देखें तो Kali Yuga, if परीक्षित महाराज Kali Yuga को, चलो अपने डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि Kali Yuga को मार दिया,
मतलब पर्सोनिफाइड को मार दिया, कलियुगा को एंटर ही नहीं होने दिया, तो क्या होगा? कलियुगा एंटर नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? द्वापर युगा रहा। ठीक, द्वापर युग में क्या था? हजारों साल, 1000 साल लोग जीते थे। उसके पहले त्रेता युग में 10,000 साल लोग जीते थे। उसके पहले सत्य युग में 100,000 years पीपल वेयर लिविंग। ठीक है, सत्य युगा त्रेता। अभी नाउ इफ यू सी दिस साइकिल, सत्य युगा त्रेता युगा, द्वापर युगा त्रेता युगा एंड कलियुगा, दिस गोज अराउंड दिस। हमें तो हम 7th मनवंतरा में है। ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतरा आते हैं। ऐसे एक दिन में, ऐसे तो मल्टीप्लाई बाय 30 days, दैट इज 1 month ऑफ ब्रह्मा, मल्टीप्लाई बाय 365, दैट इज 1 year ऑफ ब्रह्मा, 4.3 ट्रिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, उतने ईयर्स ब्रह्मा जीते हैं। इतने सारे कली फुल युगा साइकिल्स कम इन देयर। तो वो जो सालों से, अभी वी आर इन अ 51st year of Brahma or something. Brahma is in the middle age, we are somewhere around that. तो कितने हजारों युगा साइकिल्स हो गए, सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा, कलियुगा, हजारों साल। एंड if Parikshit Maharaj kills that Kali Yuga, that means the Kali Yuga is not entering. That means time is stopped. Time is the only constant. Time is energy of Krishna. Time, quality of time. जैसे liquid water का धर्म है बहना, ऐसे the time is has to flow. Time is, how can Parikshit Maharaj stop Kali Yuga entering? How can Parikshit Maharaj stop the Yuga cycles? इतना सारा जो cosmic creation है, how can Parikshit Maharaj stop? Another angle we can see is when Kali Yuga progresses, Parikshit Maharaj knew very well that the process to go back to Godhead will be very fast and easy. Chaitanya Mahaprabhu, of course, he is appearing. Srimad Bhagavatam will be appearing. And the process to go back by Harinam is very simple and easy. And Parikshit Maharaj knew that. जैसे हमको भी पता है कि अभी 427,000 years कलयुगा का बाकी है, and the process is going to be harder and harder. देखो अभी क्या हो रहा है, प्रीवियस एजेस में 1000 years में से हजारों साल लोगों को वो यज्ञ तपस्या सब करना था। उसके पहले यज्ञ डेटी वर्शिप था, और उसके पहले ध्यान था। जैसे सत्य युगा में पीपल हैव टू मेडिटेट फॉर thousands of years. So the process is becoming easier and easier in Kali Yuga, and Parikshit Maharaj knew that, and that's why when Kali Yuga surrendered, Parikshit Maharaj ne, he got the benefit of Kali Yuga. Matlab, the process became very simple to go back to Godhead, and he checked Kali as well. इसको surrender, he was a king, the one who surrenders, he has to give a shelter. तो उसने 4 चीजें ऐसी दी, meat eating, intoxication, illicit relationships and gambling. ऐसी 4 चीज दी, वो उनके साम्राज्य में हो ही नहीं रहा था. It was not at all happening. So he, in a way, he killed Kali as well as he gave the benefit to the citizens, because he was not only the ruler as a king कि उसको राज करना है बस. I am not only the king, मैं अपनी कुर्सी बचा के, अपने citizens को बचा के मैं पूरा राज करूंगा. His purpose, Raj Rishi, the king's purpose was to make sure the citizens go back to Krishna. गोलोक धाम में लोग वापस जाए, and that's why he arranged in such a way. Another way we can look, so many different ways, we can speak 1 hour on this question. Another way we can look at is he knew that Bhagavatam is going to appear. अभी वो कलयुगा का सिम्टम क्या है? प्रायण अल्पाश्च सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतायो मंद भाग्य ही उपद्रुता. कलयुगा के सिम्टम्स क्या है? quarrelsome, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य, life is short, कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतायो, misunderstanding is there, quarrel is there. And that's why if you see, अभी थोड़े ही टाइम बाद क्या होगा कि when Parikshit Maharaj goes into the forest and he was thirsty, he put a dead snake, and then the boy of that Brahmana Shringi, he cursed him because of the quarrelsome nature, because of the misunderstanding. ये सब कलयुग के प्रभाव से हुआ कि उसने वो डेड स्नेक डाला और उसने वो ब्राह्मण ने कर्ज किया, तो परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और वो बैठे और श्रीमद् भागवतम आया. So the ultimate purpose of everyone is Shravanam. Hearing is the first step. तो भागवतम सुनने को मिला, और भागवतम came to this, appeared in this world, and that's why all these different things we see as a sequence of the situations. But अभी देखो कल, if परीक्षित महाराज is killed, क्या हमको हजारों साल तपश्चर्या करनी है? कर सकते हैं क्या? पहली बात तो ये,
Can we do thousands of years of meditation like ध्यान? एक 5 मिनट तो ध्यान रहता नहीं माला करने के टाइम पे. यू जस्ट काउंट हाउ मेनी थॉट्स. एक बार पेपर में लिख के देख लो कितने थॉट्स आते हैं 7 मिनट्स माला में. हजारों साल का ध्यान का तो बात दूर है. और अदर ऑप्शन इज यज्ञ. अभी मंदिर में $100 डोनेशन के लिए तो लोग 10 बार सोचते हैं. यज्ञ में कितने सारा घी जाएगा, ये सामग्री जाएगी, और इतना सारा यज्ञ करने का, टू फाइंड द प्लेस विच इज प्योर, टू फाइंड द पर्सन हु इज चैंटिंग द मंत्रास प्योर. ऐसा कहाँ होता है हमारे पास? हजारों साल कहाँ है. उसके बाद क्या आया? डीटी वर्शिप. कहाँ पे हम ब्राह्मणा बन के मंदिर में डीटी वर्शिप इतने सालों करने वाले हैं? सो if someone or some of you wants, yes, go for it. But the easiest process the Kali Yuga has to progress, Parikshit Maharaj allowed Kali and did not kill Kali personified, is to make sure the process to go back is very easy. बस देखो, हजारों साल जो चैंटिंग डीटी वर्शिप करनी थी, हजारों साल जो यज्ञ करने थे, ध्यान करना था, उसका सिर्फ 2 घंटे में, ओनली 2 hours ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड वी गो बैक टू गॉडहेड. कितना सिंपल बना दिया है. सो सिंपल इट इज, बट पीपल फाइंड इट हार्ड. लगता है ना हार्ड की नहीं? सो मेनी पीपल से कहाँ सिंपल है, इतना तो हार्ड है. लेकिन जेन्युइनली वी डिजायर और नॉट. Another reason, I can give you 50 reasons that why Parikshit Maharaj did not allow. Another reason is the Kali Yuga is एकदम आर पार है. जिसको सही में जाना है गोलोक धाम, उसके लिए एकदम सिंपल रास्ता है. भगवान की सेवा करो, वैष्णव का संग करो, और शास्त्रों का अध्ययन करो, और तुम गोलोक धाम वापस जा सकते हो. जिसको नहीं जाना, उसके लिए इजीली एक्सेस सब कुछ है. इलिसिट्स, रिलेशनशिप्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ इजीली अवेलेबल है. कोई हिडन नहीं है. पहले के जमाने में जिसको डिजायर थी, लेकिन मीट ईटिंग अवेलेबल ही नहीं था, बिकॉज एनिमल किलिंग होता ही नहीं था, वेरी रेयरली होता था. इलिसिट गैम्बलिंग होता नहीं था, वेरी रेयर, लिटिल बिट, थोड़ा छुप छुप के होता था. लेकिन कलयुग का प्रोग्रेस आया, सबका एकदम क्लियर, आर पार. तुम्हें जाना है, ये आसान मार्ग है, तुम जा सकते हो. नहीं जाना तो ये सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है. सड़ो इधर, ये दुनिया में फंसो, मरो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फिर से आते रहो. लेकिन एकदम क्लियर है, कोई बहानाबाजी नहीं, कुछ दिखावा नहीं, एकदम आर पार हो जाता है कलयुग में. वेरी क्लियर टू पाथ. जिसको जाना है उसके लिए एकदम आसान रास्ता अवेलेबल है. जिसको नहीं जाना है वो सिर्फ बहाना बताएगा, सुबह उठा नहीं जाता, ये नहीं जाता. जाना है तो जाना है. महाराज, आई वेंट टू गुजरात, अभी लास्ट वीक आई वाज इन गुजरात. महाराज सेड, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई, अगर आपको एक शब्द व्हाई का आंसर मिल गया ना, बाकी सारे व्हाट, व्हेन, हाउ, सबका आंसर आपको मिल जाएगा. अगर आपको पता है कि क्यों माला करनी चाहिए, अगर आपको पता है कि व्हाई यू हैव टू अटेंड भागवतम इन द मॉर्निंग, कैसे करेंगे, कब करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, हम सब कुछ एडजस्ट कैसे करेंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑटोमेटिकली आंसर्ड इफ यू नो जस्ट व्हाई, कि हमें माला क्यों करनी है. कई बार लोग इंडिया जाते हैं, माला छूट जाती है. आई नो वेरी वेल, मेरे 20 साल पहले की बात करो, मैं 16 माला अच्छे से कर रहा था. इंडिया गया, माला जीरो, एसोसिएशन नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि माला क्यों करनी चाहिए. ठीक है, भगवान का नाम लेना है, अच्छा है ये सब, बट इफ यू अंडरस्टैंड, जन्मों जन्म से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये चक्कर में फंसे पड़े हैं. फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये चलता आया है चक्कर, और फिर से हम ये भौतिक जगत में. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, कलयुगा इज प्रोग्रेसिंग सो फास्ट, इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बुरा हाल आने वाला है कलयुगा में. भागवत हम पढ़ेंगे 12th कैंटो में, इतना क्लियरली लिखा है कैसा समय आने वाला है, और वो ज्यादा दूर नहीं है. प्रभुपाद वाज टेलिंग, इन जस्ट few thousand, few hundred years after this, horrible picture of this Kali Yuga is going to come. If we understand हम कैसी सिचुएशन में है, आप खुद भी देख लो, आप खुद भी, कि 50 साल ले लेता हूं मैं, 5000 साल बाद तो बहुत दूर है. 50 साल पहले जो दुनिया में अंडरस्टैंडिंग था लोगों को बीच में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, दो भाइयों के बीच में, या मदर एंड डॉटर के बीच में, आज पूरा अलग सिचुएशन है. कभी कोई सोच भी सकता है कि 50 साल पहले या 20 साल पहले कोई टीनेजर अपने बाप को या अपनी माँ को ऐसे बोलेगा? अभी आज के जमाने में देख लो, पेरेंट्स डर डर के रहते हैं टीनेज बच्चे से. अभी कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो जाएगा, उससे कुछ बोलना नहीं है. द कलयुगा इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. एंड अगर हमको पता चले ना
कि इतना फास्ट, इतना भयानक स्वरूप है कलयुग का, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, उससे तो बेटर है मैं 2 घंटा माला कर लूंगा, भागवतम पढ़ लूंगा, डिवोटी का एसोसिएशन कर लूंगा, और मुझे ये चक्कर में फंसना ही नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बस। आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दिस। 2 घंटा में वाई पता चल जाएगा ना, अपने आप टाइम निकल जाएगा, अपने आप माला अच्छे से होगी, अपने आप डिवोटी का एसोसिएशन होगा, सेवा होगी, एंड इट्स सो इजी। सॉरी, मैं तो टाइम ही भूल गया। अरुणा माता जी, आई एम सो सॉरी। वेर वेर वी 19th वर्स। चलो चलो थोड़ा तो पढ़ते हैं, नहीं तो आई थिंक सम, जैसे ईस्टर मंडे आता है, सम पब्लिक हॉलीडे आता है ना, वी कैन लॉग इन फॉर लॉन्गर टाइम एंड डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द डिटेल। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, द बुल इज सेइंग, हमें क्या पता क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, किसकी वजह से हमें हर्टिंग हो रहा है, हमें नहीं पता। डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स से डिफरेंट रीजंस, सिचुएशन एक ही है। देखो अभी हमें भी ऐसा लगता है कि ये कलयुगा उसको मार रहा है, परीक्षित महाराज को, उसको मार देना चाहिए। लेकिन धर्म प्रिंसिपल, रिलीजियस पर्सोनिफाइड प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वी कैन लुक एट द सेम सिचुएशन इन डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है, इफ ए गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग, तो कोई लड़का देखेगा उसको, अरे यार ये तो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, इससे साथ मेरा कुछ रिलेशन बन सकता है। ए यंग बॉय would be looking at the same person, the girl, in the vision of a girlfriend, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। बट इफ यू फाइंड आउट दैट गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो उसको वाइफ की दृष्टि से देखेगा, यू नो, ओ शी इज माय वाइफ। अगर उसका फादर होगा, वो गर्ल वहीं पे है, लेकिन लेफ्ट साइड पे उसका फादर खड़ा होता है, तो फादर वुड बी लुकिंग एट दैट गर्ल एज अ लविंग डॉटर, यू नो, ये तो मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी है। और अगर वो जूम में खड़े हैं, देखो एक ही जगह पे खड़े हैं, वो लड़की खड़ी है, बॉय वुड बी लुकिंग एट एज अ girlfriend, husband would be looking as a wife, father would be looking that girl as a loving my child, daughter। और वो जू में खड़े हैं, वो टाइगर है पिंजरे में, वो टाइगर would be looking at that girl as a food। और वही जगह पे अगर कोई साधु है, कोई monk है, so the sadhu would be looking at that particular girl as a soul entrapped in a woman's body। लेकिन वो कुछ भक्ति करेगी, वो फंसी पड़ी है ये भौतिक जगत में, लेकिन वो जो सोल है, उसका आत्मा है, वो गोलोक धाम जा सकता है। सो साधु वुड हैव कंप्लीटली डिफरेंट विजन। वी सी हाउ श्रील प्रभुपाद हैड अ डिफरेंट विजन। सो सेम सिचुएशन, हमें लगता है हमारी ओर से कि कलियुगा मार रहा है, उसको मार दो, काम खत्म। लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग फिलोसोफर्स दे सकते हैं। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। रास्ते में कोई जा रहा है, इफ कोई पैसे दिखते हैं, किसी का $100 का नोट गिर गया है रास्ते में, व्हेन वी आर वॉकिंग एंड वी सी $100 ए नोट, अगर कोई बंदा होगा, इफ ए पर्सन इज वैरागी और समवन, ही विल से, यू नो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद मनी, यू नो, जैसे कई साधु लोग होते हैं, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद मनी, यू नो, मैं इससे थोड़ा रास्ता चेंज करके चला जाऊंगा। कोई चोर होगा, तो वही पैसे को देख के वो क्या करेगा, जल्दी से ले लो और भाग जाओ, छुप छुप के ले लो और एंजॉय करो, मैं इससे ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, $100 से पूरा दिमाग शुरू हो जाता है। सम पीपल विल लीव इट, वो जो डिटैच्ड होते हैं वो लीव इट एज इट इज। सम पीपल जो जस्टिस वाले होते हैं, न्याय वाले होते हैं, सब कुछ ठीक अच्छे से होना चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, वही जगह पे वही पैसा, $100 का नोट होगा, वो दे विल टेक इट टू द पुलिस स्टेशन एंड दे विल, उनको दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पे मुझे मिला था, अगर कोई रिपोर्ट आती है कि $100 इज मिसिंग, यू कैन गिव इट दैट, यू नो, टू डू इट इन अ राइट वे। और कोई युक्त वैरागी होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में युक्त वैराग्य वी लर्न यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो क्या करेगा, वही $100 देगा, मंदिर में डोनेशन दे देगा या हुंडी में डाल देगा, भगवान के लिए यूज करेंगे। युक्त वैरागी, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन द service of Krishna। So here, you know, we see that the same situation can be used, seen in a different way। In material world it is like that, everything has a different perspective। हमारी दृष्टि से कुछ और लगता है, but reality can be completely different। वो गलत भी हो सकता है। एंड अगर देखो कोई बच्चा है, तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा स्ट्रांग है, क्लास में सबसे स्ट्रांग है ये बच्चा, दिस बॉय इज स्ट्रांग। वो बच्चा क्लास में सबसे स्ट्रांग है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस बॉय इज स्ट्रांग। लेकिन वही बच्चा कोई फाइटर, WWF वाला या कोई बॉक्सर के सामने खड़ा होगा, तो दिस बॉय इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज दैट पर्सन बिकेम स्ट्रांग।
लेकिन वही बच्चा क्लास में है तो ही स्ट्रॉन्ग। सेम पर्सन, सेम स्टेटमेंट, अलग अलग एक तरीके से एकदम सही है, लेकिन दूसरे एंगल से पूरा 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 कंप्लीटली रॉन्ग, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ये आजकल ये कंपटीशन होती है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, और ऐसा एक लड़की खड़ी है मिस वर्ल्ड, उसको बना दिया, बहुत सुंदर है, पूरे दुनिया में सबसे सुंदर है, और मिस यूनिवर्स अपने आप टाइटल, जैसे यूनिवर्स के सारे प्लानेट में वो जाके है। कल देखा किसी ने वीडियो, कितना बड़ा यूनिवर्स है, और वो तो एक यूनिवर्स है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। If you haven't seen the video in the group, please watch it. और just Miss Universe की competition होती है, तो ऐसे for example they have gone through all the planets of the universe, और उस लड़की को ढूंढ के खड़ा कर दिया, बोले मिस यूनिवर्स। शास्त्रों में अपने आचार्य क्या बोलते हैं कि अप्सरा जो स्वर्ग की होती है, उसके सामने ये दुनिया भौतिक जगत की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को खड़ा कर दिया, तो शी वुड बी लाइक अ कॉकरोच। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं शी वुड बी लाइक अ फ्रॉग, बोले मेंढक के जैसा दिखेगी, इतनी स्वर्ग की अप्सराएं सुंदर होती है, बट देव पीपल अपने आप ही दे देते हैं, सो सेम टाइम a statement is true, yeah, this girl is very beautiful, but at the same time the statement is false, that means she is not very beautiful. लेकिन जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, दे आर ट्रू ऑल द टाइम, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य इस, बिकॉज दैट कांट बी चेंज। जो गीता में बताया गया है, भागवत में बताया गया है, दैट कांट बी चेंज, दैट इज परम सत्य, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो रिलेटिव, ये जगत की बातों के जैसा वो रिलेटिव नहीं है। वी आर सोल, हम आत्मा है, उसमें कुछ चेंज होता है क्या? नो मैटर कौन सी दृष्टि से देख लो आप, कौन से एंगल से देख लो, कौन से टाइम पे देख लो, दैट कांट बी चेंज्ड। वी आर सोल, देयर इज अ सुपर सोल रिसाइडिंग, उपद्रष्टा तो अनुमंता, अच्छा, देयर इज सुपर सोल रिसाइडिंग, इट कांट बी चेंज्ड, वो परम सत्य है। ऐसे अपनी शास्त्र की जो भी बातें हैं ना, दैट इज ऑल परम सत्य। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, अंशुल प्रभु 20 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, श्री प्रभुपाद की जय। अप्रत अर्क्याद निर्देशात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशा स्वमनीषया। Translation purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. There are also some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor know it by imagination, nor express it by words. O sage amongst kings, judge for yourself by thinking over all this with your own intelligence. Thank you, Prabhuji. नो वन कैन एसर्ट, देखो बुल क्या बोल रहा है, नो वन कैन एसर्ट इन द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस बाय आर्ग्यूमेंटेशन। हमें नहीं पता, नो वन कैन एसर्ट इन, सही में यही गलत है, कल हम नहीं बता सकते। एंड वो किंग को बोल रहा है, ओ किंग, जज बाय योरसेल्फ बाय थिंकिंग ऑल ओवर दिस। पहले तो उसने बता दिया डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज, क्या बताया प्रीवियस वर्स, कि सम फिलोसोफर से दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम खुद ही अपनी सिचुएशन के जिम्मेदार है, हम किसी और को दोषी नहीं बता सकते। एवरीवन, सम फिलोसोफर्स से दैट हमारी जो भी परिस्थिति है, हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, हम खुद ही जिम्मेदार है। कई लोग बोलते हैं सुपर ह्यूमन पावर्स आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स अलाइनमेंट, शनि देव के प्रभाव से ये है, या कोई देवी देवता के प्रभाव से ये है, सम सुपर ह्यूमन पावर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कई लोग क्या बोलते हैं, अपने ओन कर्मिक रिएक्शन, अपने कर्मों के फल है, कुछ अच्छा किया होगा इसलिए अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा किया होगा इसलिए बुरा हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन, जैसा एक्शन किया था ऐसा रिएक्शन आ रहा है, एंड देवताज आर बाउंड टू गिव द रिएक्शन। सो सम पीपल से अपने खुद के कर्मों का फल है, और ग्रॉस मटेरियलिस्ट से इट इज द बाय नेचर, अल्टीमेट कॉज इज द नेचर, प्रकृति, दुनिया में चलता रहता है, ये दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए द अल्टीमेट कॉज इज द नेचर, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन हियर the bull is saying to Parikshit Maharaj, out of all these philosophical different ideas the bull has given, O sage amongst the king, O king, you are sage, O sage amongst the kings, judge by yourself by thinking all over this with your own intelligence. आप खुद ही सोच के देखो। Last line of this purport, verse number 20, last line, Prabhupada writes, let us see how Parikshit Maharaj solves this issue by his sagacious mind, by his wisdom. Let's see how he is solving this issue.
इंटरेस्टिंग है ना, मस्त। पूरा ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट। चलो वन मोर, राधिका माता जी। Hare Krishna. 21। हरे कृष्ण प्रभु, लेस देन मिनट लेफ्ट। ओ, जल्दी शुरू कर दिया क्या मीटिंग? चलो ओके, एटलीस्ट रीड संस्कृत। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदापर्यचष्टतम्. Suta Goswami said, O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied and without mistake or regret, he gave his reply. Hare Krishna. So now Sutta Goswami is speaking that, oh best among the Brahmanas, Emperor Parikshit ने जब ये सुना तो he was fully satisfied. क्यों? Because Parikshit Maharaj knows dharma and the person speaking he was also personified dharma. तो दोनों equal level पे intelligent थे, तो वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है. Because what he was speaking was actually dharma. He was speaking, वो विजडम के लेवल पे था, वो परीक्षित महाराज भी समझ रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड ही वाज फुल्ली सेटिस्फाइड. ठीक है, तो इधर बंद करते हैं हम. वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम वर्स नंबर 22. सॉरी, थोड़ा स्लो जा रहा है, बट क्वेश्चन आंसर्स आर आल्सो गुड. यू आर ऑल गेटिंग द पॉइंट, क्या हो रहा है, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट क्या आ रहा है अभी. एनी एडिशन, कमेंट्स? देखो, कलियुगा विल नॉट टच टू द डिवोटीज. जो वो चार चीजों से अलग रहते हैं, वो 16 राउंड करते हैं, कलियुगा इज नॉट टचिंग. अरुणा माता जी, अंशुल प्रभु, Prabhupada writes, it is the duty of husband and wife to come together and read scriptures in the morning, do devotional service. कौन करता है? हस्बैंड वाइफ साथ में आके ऐसे बैठ के भागवतम कौन पढ़ता है, बोलो? बेंडिगो में है कोई? मेलबर्न में है कोई? पूरे विक्टोरिया में है कोई? ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग होंगे? गिन चुन के फिंगर्स पे गिन सकते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठ के एक कैमरा में, दो अलग बैठते हैं वो तो बहुत है, दूसरे कमरे में कई बार एक लेकिन एक कैमरा में बैठ के फिर कलियुगा कैसे टच करेगा? एंड परीक्षित महाराज न्यू दिस. When a sincere person is there, sincere family like this, Kali-yuga can't touch. उसके लिए तो पूरा easy process, fast, guaranteed ticket to Golok Dham. जिसको बहाना बनाना है, सुबह उठा नहीं जाता, इतना काम है, उनके लिए भी परीक्षित महाराज ने पूरा पर्दाफाश, कुछ दिखा हुआ नहीं. वो मास्क होता है ना, मास्क हटा दिया है. करना है तो करना है, नहीं तो बहाना है बस. So very happy when I see both of you together in one screen. That makes a big difference. प्रभुपाद कितने खुश. रीजन ब्लेसिंग ऑनली प्रभु जी. नहीं प्रभु, रीजन ये है कि चार्जिंग एक ही फोन की करनी पड़ती है.